हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम बेसिक से चलेंगे एकदम। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जाने से पहले हमें जानना है कि ऑप्टिक्स क्या है। राइट ऑन द हेडिंग ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study about light. Write down. Optics is a branch of physics which deals with study of light. Optics is a branch of physics which deals with study of light. Next point. Optics is divided into three parts. Optics is divided into थ्री पार्ट्स। अब ये कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स which is also called ray optics. This is also called ray optics. Second one is wave optics, that is also called physical optics. And third one is quantum optics. Write on the first heading, that is geometrical optics. What is geometrical optics? First one is geometrical optics. Write down. The division of optics in which light is treated as rays. The division of optics in which light is treated as rays is called geometrical optics. Next point. Geometrical optics deals with the phenomenon reflection and refraction. Geometrical optics deals with phenomena reflection and refraction. Second one is wave optics or physical optics. Write on the heading wave optics, that is also called physical optics. Write on the definition. The division of optics in which light is treated as wave. The division of optics of
optics in which light is treated as wave is called wave optics. Is called wave optics. Next point, wave optics deals with phenomena. Wave optics deals with phenomena wave optics deals with phenomena interference, diffraction and polarization. Interference, diffraction and polarization. These are the phenomena which can only be explained by using the wave nature of light. Okay. Third one is quantum optics. Third one is quantum optics. Quantum optics. Write down. The division of optics in which light is treated as packets of energy. Write down. The division of optics, in which light is treated as packets of energy is called quantum optics. Is called quantum optics. Next point, these packets of energy is called photons. Next point, energy of a photon of light depends upon its frequency. Write down. Energy of a photon of light depends upon the frequency of light. The frequency of light. Next point, the energy of a photon is given by this formula. The energy of a photon is given by E equal to h nu. E equal to h
nu, where E is energy of one photon, H is Planck's constant, and nu is frequency of light. Okay, write down here. समझ में आ रहा है सबको? Everyone is getting? E equal to h nu. E equal to h nu. E is energy of one photon of light, where E is energy of one photon of light. H is Planck's constant. Its value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is called frequency of light. Nu is called frequency of light. Okay, quantum optics, the division of optics in which light is treated as a packets of energy, is called quantum optics. These packets of energy are called photons. Energy of a photon of light depends upon the frequency of light. The energy of a photon is given by E equal to h nu, where E is energy of one photon of light, h is frequency Planck's constant, and its value is 6.63 10 to the power minus 34 joule second, and nu is frequency of light. Everyone is getting? Clear है सबको? Any doubt? No. Now we have studied about the optics, division of optics. कितने डिवीजन हमने पढ़ा? 3 डिवीजन. पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, एंड थर्ड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स. कोई भी ऑप्टिक्स हो, एनी ऑप्टिक्स, व्हाट वी स्टडी, किसके बारे में स्टडी करना है? उसमें लाइट के बारे में. किसके बारे में स्टडी करना है? लाइट के बारे में. तो ये लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? यस, एवरीवन राइट ऑन द हेडिंग लाइट. Light. What is light? Write on the first question. Question is very simple question. Have you ever seen light? First option yes, always. Second option is no, never. I have never seen light. Never. Third option is sometimes. कभी कभी देखते हैं लाइट को भाई. दिन है तो देखते हैं लाइट को, रात तो नहीं देखते हैं लाइट को. एंड ऑप्शन डी,
भाई इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आई डोंट नो, कांट से एनीथिंग अबाउट लाइट। यस, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। यस, क्या किसी ने लाइट को देखा है? क्या हमने कभी लाइट को देखा है? रेड लाइट, वाइट लाइट, ब्लू लाइट, देखा लाइट को? बताओ। चलो देखते हैं। ये हाथ है हमारी, आँख के सामने हमने हाथ को रख दिया। क्या हाथ के पीछे की चीज़ें हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। एक पर्दा लगा दिया, पर्दा की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रख दिया हमने, क्या पर्दा की पीछे की चीज़ें दिखेगी हमें? नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। एक हमने ग्लास लगाया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसके पीछे कुछ चीज़ें हमने रखा, क्या वो हमें दिखेगी? वो दिख जाएगी, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, हमारी हाथें ओपेक है, तो इसे उसके पीछे की चीज़ें नहीं दिखेगी। पर्दा ओपेक है, उसके पीछे की चीज़ें नहीं दिखेगी। बट ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसके पीछे की चीज़ें हमें दिखेगी। बट अगर ग्लास की ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लास दिखना बंद हो जाएगा, ग्लास में नहीं दिखेगा, बस पीछे की चीज़ें दिखेगी। हाँ, जब इधर से मूव करेंगे, धक्का लगेगा, तो हमें पता चलेगा भैया कुछ है यहाँ पे, देखेंगे टटोल के, लगेगा कि हाँ कुछ तो दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन है कुछ, वो ग्लास है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर उसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया, उसके रब कर दिया, तो ट्रांसपेरेंसी कम होती गई, तब दिखने लगा भैया, तब वो दिखेगा। उसको पेंट कर दिया, पूरा दिखेगा अब तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ओपेक है तो ओपेक के पीछे की चीज़ें हमें नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट है उसके पीछे की चीज़ें हमें क्लियर दिखेगी। ठीक है ये। और जितने जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी कम करते जाएंगे, उसके पीछे की चीज़ें दिखना कम होता जाएगा और वो चीज़ें दिखना ज़्यादा होता जाएगा। उसी तरह से लाइट रूम में भरे हुए हैं, अगर लाइट दिखने लगे तो क्या लाइट के पीछे जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो नहीं दिखेगा तब? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है क्लियरली, इसका मतलब है लाइट नहीं दिख रही है। अगर लाइट दिखती तो लाइट के ऑब्जेक्ट्स, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता, लाइट ने ब्लॉक कर रखा होता। बट हमें सारी ऑब्जेक्ट्स दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट हमें नहीं दिख रही है। लाइट इज हाईली ट्रांसपेरेंट, लाइट इज हाईली ट्रांसपेरेंट चीज़ है ये, मतलब लाइट हमें दिखने वाली चीज़ नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नो, नेवर। लाइट को किसी ने नहीं देखा है। लाइट सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। क्या करता है ये? लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प करता है। नाउ राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन ऑफ लाइट. Light is an, write down, light is an invisible form of energy, which causes sensation of vision. Light is an invisible form of energy which causes sensation of vision. क्लियर है ये?
इनविजिबल फॉर्म, एनर्जी का एक इनविजिबल फॉर्म है जो दिखती तो नहीं है बट दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखाने में मदद करती है, हेल्प करती है। क्लियर है ये? दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें दिखाती है ये। लाइट हमेशा इंसान के लिए एक बहुत ही अजीब चीज़ रहा है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बोली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब क्या सही क्या गलत कुछ नहीं पता, बट कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो गई तो मान लिया भैया हाँ ये हो रहा है। एक्सप्लेन नहीं हो पाई तो मान लिया कि गलत है। तो उसी तरह से बनाया गया थ्योरीज अबाउट लाइट। लाइट के बारे में थ्योरी, अलग अलग थ्योरियाँ। तो उसमें कुछ थ्योरियाँ पढ़ेंगे अपन जो थोड़ा सा रिलेवेंट है। थ्योरियाँ बहुत है बट अपने को पढ़ना नहीं उतना, अपने को वही पढ़ना है जो रिलेवेंट है, जो सही माना गया, कुछ कुछ हद तक सही था ना। तो राइट डाउन द हेडिंग थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। और नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। राइट डाउन द हेडिंग nature of light. Now write down the subheading theories about nature of light. Theories about nature of light. There are different theories about नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के नेचर के बारे में बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई है। उसमें से कुछ थ्योरियाँ जो रिलेवेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरी इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। According to this theory, light is a beam of very small particles which travels with very high speed in space. Write down. According to this theory, light is a beam of very small particles which travels with very high speed in space. Next point, these particles are called corpuscles. These particles are called corpuscles. Next point, this theory is able to explain
explained reflection and refraction, but failed to explain the phenomena of interference, diffraction, polarization, etc. This theory explained reflection and refraction, but failed to explain the phenomena of interference, diffraction, polarization, etc. Therefore, this theory is rejected. Therefore, this theory is rejected. इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी नहीं था. नेक्स्ट थ्योरी इज, सेकेंड वन इज हाइजेंस वेव थ्योरी. Huygens wave theory. Yes, everyone write down. According to Huygens wave theory, according to this theory, light is a mechanical wave. Light is a form of mechanical wave. According to this theory, interference, diffraction and polarization are explained. This theory is able to explain, write down, this theory is able to explain interference, diffraction and polarization. Diffraction and polarization. Write down. This theory explained interference, diffraction and polarization. इस थ्योरी में क्या कहा गया है? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? which requires material medium for its propagation. A wave which requires material medium for its propagation is called mechanical wave. But light can travel in vacuum also. It means what? Light is not a mechanical wave. लाइट मैकेनिकल वेव तो है ही नहीं. लाइट कैसा वेव है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो बाद में जिसका इन्वेंशन हुआ, जिसका खोज हुआ, पता चला कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है,
लाइट एक कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है ये? तो इस वजह से ये थ्योरी क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी is unable to explain the phenomenon of photoelectric effect. This theory is unable to explain the phenomenon of photoelectric effect. ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और बाद में क्या पता चला, ये मैकेनिकल वेव भी नहीं है। इट मीन्स व्हाट, लेटर ऑन this was discovered that light is not a mechanical wave, it is an electromagnetic wave. तो इस तरह से इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां पाई गई। देयरफॉर दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। थर्ड वन इज प्लैंक्स quantum theory. According to this theory, light is packets of energy. According to this theory, light is packets of energy. And these packets of energy are called what? Photons. Write down. According to this theory, light is, or we can say light travels in the form of packets of energy, or quantas of energy. These packets of energy are called what? Photons. जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है इसको क्या कहा गया? फोटॉन्स कहा गया। अब हर फोटोन में क्या है? एनर्जी है, और वो पैकेट और वो फोटोन ट्रेवल कर रहा है वेरी हाई स्पीड से। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। द एनर्जी, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन
each photon is given by E equal to h nu, where जहाँ पे E क्या है, you know, E is energy of each photon, energy of one photon or each photon one photon. H is Planck's constant, H is Planck's constant, and its value is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 यूनिट है जूल सेकेंड. 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 joule second, and nu is frequency of light. Nu is frequency of light. ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है जिसके फोटोन का एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट पॉइंट, this theory explained the phenomenon of photoelectric effect. This theory explained the phenomenon of photoelectric effect. Write down. We can say Einstein used this theory to explain the phenomenon of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है मॉडर्न चैप्टर, एकदम लास्ट चैप्टर. वहाँ पे हम इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो इतनी सारी बातें हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में. फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light travels in the form of packets of energy or quantas of energy. These packets of energy are called what? Photons. ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, छोटे छोटे पैकेट हैं एनर्जी के, उसको क्या कहा गया? फोटोन कहा गया. द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाई इक्वल टू एच न्यू. हर फोटोन का एनर्जी, ईच फोटोन, एवरी फोटोन, प्रत्येक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा? E इक्वल टू एच इंटू न्यू के बराबर होगा. वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. इसी में अगर नंबर ऑफ फोटोन्स n कर दिया तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? राइट डाउन. इफ number of photons is n, then total energy will be equal to n times of h into nu. n टाइम्स ऑफ h इंटू न्यू हो जाएगा. तो इतनी सारी बातें इसमें हमने पढ़ लिया. फोर्थ थ्योरी इज डी ब्रॉगलीज
डी ब्रॉगलीज डुअल थ्योरी, डी ब्रॉगलीज डुअल थ्योरी। डी ब्रॉगली ने क्या बताया? डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट में दोनों ही नेचर है। कौन कौन सा नेचर? वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इन्होंने क्या किया? दो थ्योरी को आपस में मिला दिया। कौन कौन से थ्योरी को? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और हाइजेंस वेव थ्योरी को। हाइजेंस वेव थ्योरी के कुछ पार्ट को ले लिया, जो करेक्ट पार्ट था उसको ले लिया, जैसे कि मैकेनिकल वेव नहीं है उसको छोड़ दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट करके उसको रख लिया इसमें। दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये एकदम करेक्ट था, इसको रख लिया। और इन्होंने बताया कि लाइट में दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, light has dual nature, light has dual nature, wave nature and particle nature, वेव नेचर में क्या है? वेव नेचर में क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट डाउन। वेव नेचर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड, पार्टिकल नेचर में क्या बोला इन्होंने? पार्टिकल नेचर में इन्होंने बोला कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वो पार्टिकल कैसा है? पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। दैट इज, वो क्या है? फोटोन है। दैट इज, लाइट travels in the form of packets of energy, or particle of energy, and these particles are called photons. These particles are called photons. तो इतनी सारी बातें डी ब्रॉगली ने बताया। अब डिटेल में डी ब्रॉगली थ्योरी पढ़ना है तो वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? मॉडर्न चैप्टर में। यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया ऑप्टिक्स के डिफरेंट पार्ट्स, फिर हमने देखा लाइट क्या है, डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट, थ्योरीज अबाउट लाइट, डिफरेंट थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट।
अब ये लाइट है तो इसका कुछ सोर्स होना चाहिए, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ये आ रही है। राइट डाउन द हेडिंग सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। Write down the definition. Any object, any object, any object which emits light of its own or reflects light falling on its surface is called source of light. सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करे या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कहीं और से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। सोर्सेस ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स। Write down. Source of light is of two types. First one is luminous source. And second one is non-luminous source. First one is luminous source and second one is non-luminous source. तो सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ये क्या है अभी देखते हैं। एवरीवन राइट ऑन द हेडिंग ल्यूमिनस सोर्स। एनी ऑब्जेक्ट which emits light of its own, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करे। एनी ऑब्जेक्ट which emits light of its own is called luminous source of light. Luminous source of light. अब ल्यूमिनस सोर्स दो तरह का हो सकता है, नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। ल्यूमिनस सोर्स कैन बी डिवाइडेड into two parts. First one is natural luminous source, of light, and second one is artificial luminous source ऑफ लाइट। नेचुरल में क्या आएगा? सन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सन है। और क्या होगा? स्टार्स। दीज आर नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट।
और क्या हो सकता है? फायरफ्लाई, एटसेट्रा। आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? लैंप, लैंप को इंसानों ने बनाया है। ट्यूबलाइट, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और इस तरह से बहुत सारे एटसेट्रा। तो हमने देख लिया ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। और ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट दो तरह का हो सकता है, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल में क्या आएगा? सन, स्टार्स, फायरफ्लाई एटसेट्रा। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? लैम्प, ट्यूबलाइट, बल्ब और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस source of light, non-luminous source। Write down the definition. Any object which doesn't emit light of its own but reflects light falling on its surface is called non-luminous source of light। Non-luminous source of light। अब नॉन लुमिनस भी दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नॉन लुमिनस नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्स, लुमिनस सोर्स एंड आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेचुरल नॉन ल्यूमिनस सोर्स का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज मून। मून खुद लाइट एमिट नहीं करती है, ये सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, दैट्स वाई दिस इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। और इसको हमने नहीं बनाया है, दैट्स वाई इट इज नेचुरल। तो नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्स, बेस्ट एग्जाम्पल इज मून। और भी एग्जाम्पल हो सकता है प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स। आवर बॉडी, हमारे बॉडी को भी हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो दीज आर ऑल नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस सोर्स का एग्जाम्पल
बुक जो हम पढ़ते हैं, बुक को हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी हम पढ़ पा रहे हैं। टेबल, अभी ये वाइट बोर्ड दिख रही है, ये वाइट बोर्ड को इंसानों ने बनाया है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी ये हमें पढ़ाई हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑल दीज आर आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये है सोर्स ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट देख लिया हमने, लाइट को प्रोड्यूस कर दिया। अब लाइट को प्रोड्यूस हो जाने के बाद क्या होना चाहिए? लाइट ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल कहाँ करेगा? किसी न किसी मीडियम में करेगा। तो राइट ऑन द हेडिंग मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट। Write on its definition. Any substance through which light passes, or tries to pass. Any substance through which light passes or tries to pass is called medium of light. Is called medium of light. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट पास कर सके या फिर उससे पास करने की कोशिश करे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? लाइट का मीडियम कहलाएगा। अब मीडियम कितने तरह का हो सकता है? राइट ऑन, मीडियम इज ऑफ 3 टाइप्स। मीडियम ऑफ लाइट each of 3 types. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम, and third one is opaque medium. Transparent medium, translucent medium and opaque medium. Transparent medium, translucent medium and opaque medium. Everyone write on the heading transparent medium. First one is transparent medium. Write down its definition. Any substance which allows light to pass through it, completely is called transparent medium.
is called transparent medium. Any substance which allows light to pass through it completely is called transparent medium. Examples: air, clean water, vacuum, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जिससे लाइट कंप्लीटली पास कर जाए। वैसा मीडियम क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। दूसरा जो मीडियम है वो क्या है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जिससे थोड़े थोड़े मात्रा में लाइट पास कर जाए और कुछ लाइट पास नहीं कर पाए, तो वैसा मीडियम क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा। राइट ऑन द हेडिंग ट्रांसलूसेंट मीडियम। Second medium is translucent medium. Translucent medium. Write down its definition. Any substance which allows a part of light to pass through it is called translucent medium. Any substance which allows a part of light to pass through it is called translucent medium. ऐसा सब्सटेंस जो लाइट के कुछ पार्ट को अपने से पास होने दे, वैसा मीडियम क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा। एग्जाम्पल: ऑयली पेपर। पेपर पे ऑयल लगा दो, हल्की हल्की लाइट पास कर जाएगी उससे। फॉग, जो कोहरा होता है, कोहरा से हल्की फुल्की लाइट पास करते, कुछ कुछ धुंधले धुंधले दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह का मीडियम जो है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा। क्लियर है? थर्ड वन इज ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। ओपेक मीडियम क्या है? ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी पास ना कर पाए, उस तरह का मीडियम क्या कहलाएगा? ओपेक मीडियम कहलाएगा। राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। एनी substance which does not allow light to pass through it at all is called
ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, OPAQUE, ओपेक मीडियम। एग्जाम्पल्स, ये बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये ओपेक मीडियम है, लाइट पास नहीं कर रही है इसके आर पार। वॉल, बुक्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चारों तरफ देखो, जितनी चीज़ें दिख रही है मैक्सिमम चीज़ें ओपेक मीडियम ही है। तो इस तरह से हमने देख लिया मीडियम ऑफ लाइट को। मीडियम ऑफ लाइट, एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस और tries to pass is called medium of light. Medium of light is divided. Medium of light is of three types, or medium of light is divided into three parts. First one is transparent, second one is translucent, and third one is opaque medium. So first one, that is transparent medium. Any substance which allows light to pass through it completely is called transparent medium. Second one is translucent medium. Any substance which allows a part of light to pass through it is called translucent medium. Example, oily paper, fog. Opaque medium, any substance which does not allow light to pass through it at all is called opaque medium. For example, whiteboard, वॉल, बुक्स और हमारे आसपास देखने वाली मैक्सिमम चीज़ें ओपेक मीडियम में आएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी, मीडियम ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is rarer medium and second one is denser medium. Write down. According to optical density, medium of light is divided into two parts. First one is rarer medium. Second one is denser medium. So write on the first heading, that is rarer medium. Yes, everyone write on the first heading, that is rarer medium. A medium having higher optical density, a medium having rarer medium, a medium having low optical density as compared to other medium, is called rarer medium.
अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करता है स्पीड ऑफ लाइट को। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिसाइड करता है? स्पीड ऑफ लाइट को। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा उसको कहेंगे कि वो ऑप्टिकली रेयर है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसको क्या कहेंगे? वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मीडियम in which speed of light is greater than other medium is called optically rarer medium as compared to other medium. A medium in which speed of light is greater than any other medium is called optically rarer medium as compared to that other medium, जो दूसरा मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में अगर पहले मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो पहले मीडियम को क्या कहेंगे? ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और दूसरे मीडियम को क्या कहेंगे? डेंसर। नोट कर लो, राइट ऑन द हेडिंग डेंसर मीडियम। तो हम लोगों ने मीडियम ऑफ लाइट में रेयर मीडियम देख लिया। सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम। सेकेंड वन इज denser medium. A medium having higher optical density as compared to other medium. A medium of light, a medium having higher optical density as compared to other medium is called denser medium. Or we can also write a medium in which speed of light is lower than other medium is called optically denser medium as compared to that
अदर मीडियम। एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ले लिया वाटर, वाटर, वाटर। एक ले लिया हमने ग्लास, ग्लास। दोनों ट्रांसपेरेंट है, क्लीन वाटर है ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है ग्लास। दिस इज ग्लास, दिस इज वाटर। और वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में। वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड कम है, कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास कैसा मीडियम होगा और ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर कैसा मीडियम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। एंड ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर एक रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। समझ में आ गया सबको। यहाँ पे हम दो मीडियम को कंपेयर करके ही बताएंगे, उसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है कि रेयर है। क्लियर है जी? ओके। तो हमने पढ़ लिया, सोर्स ऑफ लाइट पढ़ लिया, मीडियम ऑफ लाइट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मीडियम पढ़ा, टाइप्स ऑफ मीडियम पढ़ा। पहला टाइप्स हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी और डिपेंडिंग अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी medium of light is of two types. First one is rarer medium, second one is denser medium. rarer medium कैसा medium होगा, जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और जिसमें लाइट की स्पीड कम है उसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। वैक्यूम कैसा मीडियम होगा, वैक्यूम विल बी रेयरेस्ट मीडियम, सबसे रेयर मीडियम है वो, उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। तो वैक्यूम इज रेयरेस्ट मीडियम ऑफ ऑल, यू कैन से। Depending upon composition medium of light is divided, medium of light is divided into two parts. First one is homogeneous medium. First one is homogeneous medium and second one is heterogeneous medium. Write on the first heading, that is homogeneous medium. First one is homogeneous medium. Write on the first heading, that is homogeneous medium. A medium in which composition is same throughout the medium.
पूरे मीडियम में एक तरह का कंपोजिशन है, एक तरह का सेम तरह का मटेरियल है, जो भी है सेम तरह का है, वैसा मीडियम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मीडियम कहलाएगा। हाँ, मीडियम a medium having same composition throughout the medium is called homogeneous medium. For example, distilled water में पूरे वाटर का कंपोजिशन सेम है हर जगह, तो ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मीडियम कहलाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल वैक्यूम, बेस्ट एग्जाम्पल इज वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, there is nothing in vacuum, therefore throughout its composition is same। यूनिफॉर्म ग्लास कोई हो जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, तो वो ग्लास कैसा मीडियम कहलाएगा? होमोजीनियस मीडियम कहलाएगा। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मीडियम। राइट ऑन द हेडिंग हेट्रोजीनियस मीडियम। हेट्रोजीनियस medium, a medium in which composition does not remain same, throughout the medium, is called heterogeneous medium। heterogeneous medium, a medium in which composition does not remain same throughout the medium is called heterogeneous medium। Best example is air। बेस्ट एग्जाम्पल इज एयर। नीचे के जो एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर जाने पे डेंसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब कंपोजिशन चेंज हो रहा है। एयर इज अ हेट्रोजीनियस मीडियम। फॉग इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मीडियम। और भी एग्जाम्पल, वाटर, मडी वाटर है, मडी वाटर एकदम जिसमें कीचड़ लगे हुए पानी है, तो उसमें क्या है, नीचे ज़्यादा कीचड़ है, ऊपर थोड़े से कम होंगे, तो कंपोजिशन सेम नहीं है थ्रू आउट द मीडियम, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मीडियम। तो हमने देख लिया मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट को हमने सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड थर्ड वन इज ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट सारी की सारी लाइट पास कर जाए वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिससे कुछ पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट पास कर पाए वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओपेक मीडियम क्या कहलाएगा? जिससे बिल्कुल भी लाइट पास ना करे तो कहलाएगा
ओपेक मीडियम। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू और डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी। डिपेंडिंग अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज रेयर मीडियम, सेकेंड वन इज डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम ऐसा मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू अदर इज कॉल्ड rarer medium. A medium having low optical density as compared to the other medium is called rarer medium. Denser medium, a medium having higher optical density as compared to other medium is called denser medium. क्लियर है ये? उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर दिया। जो मीडियम रेयर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, जो मीडियम डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं अ मीडियम हैविंग लो स्पीड ऑफ लाइट और लेसर स्पीड ऑफ लाइट दैन अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, एंड अ मीडियम हैविंग हायर स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट एज कंपेयर टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम। हमने कंपेयर कर लिया दो मीडियम को, एक हमने वाटर लिया, दूसरा हमने ग्लास लिया। तो वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ग्लास के कंपेयर में वाटर कैसा मीडियम होगा? ग्लास के कंपेयर में वाटर कैसा मीडियम होगा? रेयर मीडियम। और वाटर के कंपेयर में ग्लास कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। एक और भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वाटर ले लो, वाटर और एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देयरफॉर एयर इज रेयर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, बट वाटर इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। क्लियर है ये? नाउ कंपेयर glass and air. Compare glass and air. In air speed of light is greater than glass. In air speed of light is greater as compared to speed of light in glass. Therefore as compared to glass air is rarer medium, and as compared to air ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो हमने ये देखा। देन डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन मीडियम ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन द मीडियम ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मीडियम, सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मीडियम। व्हाट इज होमोजेनियस मीडियम? A medium having same composition throughout the medium is called homogeneous medium. Example: distilled water, vacuum, glass, etc. Distilled water, vacuum, glass और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। Heterogeneous medium, a medium in which composition does not remain same throughout the medium is called heterogeneous medium. ऐसा मीडियम जिसमें कंपोजिशन पूरे मीडियम में समान ना हो, वैसा मीडियम क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मीडियम कहलाएगा। एग्जाम्पल: एयर, फॉग, मडी वाटर एट्सेट्रा। तो यहाँ तक हमने देख लिया मीडियम ऑफ लाइट को। नाउ राइट ऑन द हेडिंग। अब लाइट इमिट हुआ, लाइट सोर्स से निकला, मीडियम में ट्रैवल किया, अब कहीं ना कहीं जाके वो स्ट्राइक कर जाएगी, किसी दूसरे मीडियम से जाके स्ट्राइक करेगी। दूसरे मीडियम से जाके स्ट्राइक करेगी तो हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए? बताओ, बोलो, सोच के बताओ। दो मीडियम है तो दोनों मीडियम का एक इंटरफेस होगा ना।
और वहाँ पे जाके लाइट स्ट्राइक कर रही है, एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब वो इसके इंटरफेस को स्ट्राइक कर रही है। तो वहाँ पे क्या क्या फिनोमेना हो सकता है? तो राइट डाउन द हेडिंग बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ light at the interface of two media, at the interface of two media, behavior of light at the interface of two media. This is medium 1, this is medium 1, this is medium 2, and this is the interface of two मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। लाइट आ रही है, मीडियम 1 से होते हुए, इस लाइट को क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट। इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट। अब ये लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गई, इसके बाद क्या हो सकता है? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर सकती है, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। और कुछ पार्ट क्या करेगी? इस मीडियम से होके पास कर जाएगी, इस लाइट को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट कहेंगे। इंसिडेंट लाइट, कुछ पार्ट निकल गई बाहर, फर्स्ट मीडियम में ही चली गई, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। और कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम से होके पास कर गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट, एंड रिमेनिंग पार्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सेकेंड मीडियम। और कुछ पार्ट मीडियम ने, कुछ लाइट का कुछ पार्ट मीडियम ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ राइट डाउन। When light traveling through medium 1, when light traveling through medium 1 strikes the interface of medium 2 or strikes the surface of medium 2, then number 1, a part of light gets reflected back into the first medium. A part of
a part of incident light, a part of incident light gets reflected back into the first medium. This phenomenon is called reflection of light, and the light is called reflected light. नंबर 2, और क्या हो सकता है? A part of light gets transmitted through the second medium. A part of incident light gets transmitted through the second medium. This phenomenon is called refraction, and the light is called refracted light. A part of incident light gets transmitted through the second medium. This phenomenon is called refraction and the light is called refracted light. जब लाइट पास करके दूसरे मीडियम से, इस फेनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, और इस लाइट को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट कहेंगे. थर्ड पॉइंट इज remaining part of light incident light gets absorbed by the second medium. This phenomenon is called absorption of light. And the light is called absorbed light. And this part of light is called absorbed light. तो इस तरह से हमने देख लिया बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया. When light traveling through medium 1 strikes the interface of medium 2, then a part of incident light gets reflected back into the first medium. This phenomenon is called reflection of light and the light is called
reflected light. Second point is, a part of incident light gets transmitted through the second medium. This phenomenon is called refraction of light, and the light is called refracted light. And third one is, remaining part of incident light gets absorbed by the second medium. This phenomenon is called absorption of light, and the light is called absorbed light. तो इस तरह से हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया बिहेवियर ऑफ लाइट को.